So after HDFS, we have to learn MapReduce. HDFS is a storage component in a Hadoop ecosystem, whereas MapReduce is a data processing component, right? Just after storing the data into HDFS, the large or big data into HDFS, if you are not able to process it, there is no means. Okay, what we do in traditional way, we store the data in different servers, and whenever we want to do any analytics or any extraction from those data, we need to bring those data into a single server in a centralized database. Then only you can perform any analytics. That was the traditional way. That has to be changed. Okay, so Google has introduced this or made this MapReduce in 2004, in the late 2004, around December 2004. Okay, processing components in a distributed environment. Okay, how we can process this big data in a distributed environment parallelly, rather than bringing all the data from different server into central database. Are we able to execute those in that server only and then bring the result only? That will save our time. In that aspect, they have uh, invented this MapReduce, Google. Okay, and they were using this MapReduce since 2004. There are many upgradation on that, and after some time, Hadoop also introduced this MapReduce into its ecosystem, right? This MapReduce is actually written in Java, and you can make your own code, that mapper and reducer code, based on your program or based on your data. Like whatever you want to perform, you can just change it and perform your task. Mapper and reducer, two classes you have to implement. ठीक है, तो ये जावा में मोस्टली होता है. सो दोज पीपल हु आर नॉट, इनिशियली जावा में सारा काम हो रहा था तो प्रोग्रामर की जरूरत थी. धीरे धीरे हडूप इकोसिस्टम में वी गॉट वेरियस प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स लाइक पिग, हाइव, HBase, where if you are comfortable with SQL, you need not to just learn the Java and make a program or a code for executing your data or your analytics. ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ SQL कमांड देना है, बट एट द बैक एंड Hadoop, what Hadoop is actually doing, you are giving command in SQL and it is converting it into Java file and then performing. एक्चुअली मैप रिड्यूस को वो जॉब सबमिट कर दिया गया, वो क्लाइंट एज अ क्लाइंट बन गया पिग, एंड इट इज सबमिटिंग द जॉब टू मैप रिड्यूस एंड परफॉर्मिंग ऑल द टास्क एंड गिविंग रिजल्ट बैक टू द पिग. एंड नाउ इट इज अ duty of pig to just convert that data into or result into the format in which it has been made. Okay, or the user wants. Okay, so it is a programming model that simultaneously processes and analyzes huge data sets logically into separate cluster. ठीक है, क्लस्टर का मतलब आप तो समझ रहे होंगे, तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है. वेयर मैप सॉर्ट्स द डेटा, नॉट ओनली सॉर्ट्स द डेटा, इट फर्स्ट मैप द टास्क. सी व्हाट मैप रिड्यूस एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे कर रहा है, ये जो भी उसके पास टास्क आता है, इट डिवाइड्स दैट टास्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड गिव दैट टास्क टू सम डेटा नोड्स. अब आप HDFS पढ़ चुके हैं तो आपको नेम नोड, डेटा नोड्स पता है. स्लेव नोड्स को वो एक टास्क देता है, दैट टास्क विल बी परफॉर्म ऑन द डेटा विच इज स्टोर्ड देयर इन दैट स्लेव नोड. ठीक है, उस पर परफॉर्म हो रहा है. लाइक दैट मैप रिड्यूस का काम है मैप करना सारे स्लेव नोड्स को, उनका टास्क, और उसके बाद उनसे उनका जो भी आ रहा है बीच में एक और फेज आता है जिसको हम लोग शफल एंड सॉर्ट बोलते हैं, हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे. एंड देन reducer will just segregates it into logical cluster. ठीक है, thus removing the bad data and retaining the necessary information. ठीक, so MapReduce is the data processing component of Hadoop. It attains the task of data processing by distributing task across the nodes. ये भी हमने अभी पढ़ा. Task on each node processes data present locally. Yes, हर एक डेटा नोड में जो भी टास्क है, इट विल परफॉर्म दैट टास्क ओनली ऑन दैट नोड लोकली. ठीक है, तो मैप रिड्यूस को आप इस तरीके से बोल सकते हो, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क ऑफ अपाचे हडूप.
where the actual data is stored in HDFS, in the where the actual data is stored in the HDFS gets processed efficiently. ठीक है, here it will take the data from the HDFS only. तो जिस तरीके से HDFS में आपने देखा कि कैसे ब्लॉक्स में डेटा स्टोर होता है, तो इट इज एबल टू प्रोसेस दोज डेटा ओनली. ये HDFS से ही डेटा रीड करता है और HDFS में ही डेटा स्टोर करता है. तो अगर आपके पास आपके लोकल फाइल सिस्टम में कोई फाइल है, तो you first have to store that into HDFS. Then only you will be able to run that MapReduce code with that on that data. ठीक है, तो this MapReduce breaks down a big data job into smaller task. ठीक है, and it is responsible for analyzing the large data set in parallel before reducing it to find the results. ठीक है, so it consists of two phases. Actually, MapReduce works by breaking the data processing task into two phases: map phase and reduce phase. And in between, it has a small phase. Map और reduce phase के बीच में it has small phase called shuffle and sort. ठीक. तो अगर आपको इसका प्रोग्राम लिखना है, तो यू नीड टू राइट अ कोड फॉर मैप फंक्शन एंड रिड्यूस फंक्शन. ठीक है, तो Hadoop MapReduce क्या कर रहा है? इट इज टेकिंग द बिग डेटा एंड गिविंग रिजल्ट्स in a by processing it in parallelly in a distributed environment and giving the result in a few minutes. ठीक है, ये मैंने एक साइट से लिया. तो MapReduce का बहुत कुछ इसमें एक ही डायग्राम में इसने बना दिया है, तो आई तो कॉपीड इट फ्रॉम देयर. सो MapReduce यूज्ड इन, कहाँ यूज कर सकते हो आप? इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग के लिए. When if you want to classify, you can use MapReduce. Recommendation systems बनाने के लिए you can use MapReduce. Analytics के लिए you can use MapReduce. It has various features, as you can see, because it is a programming model. It is a programming model. Large scale distributed model, ये भी अभी हमने पढ़ा. And parallelly ये data को process करता है, तो it has that feature that you can utilize in your task or in your work. ठीक है, it has two functions, map and reduce, ये भी हमने अभी पढ़ा. डिजाइन पैटर्न्स, मतलब इसमें से आप जब रिजल्ट्स आएंगे तो कैसे होंगे? यू कैन यूज इट इन समराइजेशन, जो इन्वर्टेड इंडेक्स, पेज रैंकिंग वगैरह में हम लोग यूज करते हैं. क्लासिफिकेशन में टॉप एंड रिकॉर्ड्स आपको फाइंड आउट करना है क्लासिफिकेशन में. रिकमेंडेशन में टू रिकमेंड एनी आइटम और एन आइटम टू अ यूजर. ठीक है, सॉर्टिंग के लिए. एनालिटिक्स, where you have to perform various operation like join and selection. Okay, so these all can be performed with this MapReduce. It is implemented by Google first and then it has been incorporated into Apache Hadoop. और Apache Hadoop MapReduce को इन सभी के साथ यूज करता है HDFS, Pig, Hive and HBase. It takes data from HDFS. It can use as it can work behind these three APIs: Pig, Hive, HBase. ठीक है, तो ये नटशेल में एक MapReduce का बहुत अच्छे से सारी चीजें इसने बताई है एक ही स्लाइड में. तो ये आपको बहुत सारी चीजें MapReduce के बारे में आपको याद रखने में हेल्प करेगा. ओके, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब जितनी चीजें आपने पढ़ी उससे ये समझ में आ रहा है कि इट गिव्स यू पैरेलल प्रोसेसिंग. यू कैन प्रोसेस योर डेटा इन पैरेलल. ठीक है, दैट विल मेक योर प्रोसेसिंग फास्टर. ठीक, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. कैसे फास्टर हो रहा है? पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे हो रही है? जस्ट इमेजिन इफ वी हैव 5 nodes, 5 slave nodes in our cluster. If we have 4 nodes, okay, this have some data, this nodes have some data, this node has some data. ये इसके पास भी कुछ डेटा है. सेंट्रल आपके पास, ये अगर मैं इसको नेम नोड बोलूं और इसको मैं डेटा नोड्स बोलूं, तो नेम नोड ने असाइन कर दिया टास्क. ऑल्दो इसको हम नेम नोड नहीं बोलते जब हम MapReduce की बात करते हैं, लेकिन मैं अभी इसको यही ले रही क्योंकि आपके दिमाग में भी सिर्फ यही वर्ड्स हैं. ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं? हम डेटा
हमारा डेटा सभी जगह डेटा नोड्स में ही एक्चुअली स्टोर होता है, नेम नोड के पास तो सिर्फ मेटा डेटा होता है। टास्क असाइन हुआ, क्लाइंट ने नेम नोड को दिया, नेम नोड ने टास्क डिवाइड किया एंड इट हैज असाइंड दैट smaller tasks to different slave nodes. Those slave nodes will perform that smaller task into their data. ये अपना प्रोसेसिंग कर रहा है, ये अपना कर रहा है, तो ये पैरेलली आप इतने सारे डेटा पे एक साथ प्रोसेसिंग कर पा रहे हो, ठीक है। दैट विल मेकिंग योर प्रोसेसिंग फास्टर, ठीक। दूसरा एडवांटेज है डेटा लोकेलिटी। डेटा लोकेलिटी का मतलब ये है कि हम ट्रेडिशनली क्या कर रहे थे, हम ट्रेडिशनली ये कर रहे थे, देखो इसको अगर मैं ट्रेडिशनल बात करूं तो एक एग्जांपल हर जगह लेता है, जैसे कि अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, होंगे, है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि हर एक वार्ड का डिफरेंट डिफरेंट बूथ सेक्शन बनता है, वहां पर जाके सब वोटिंग करते हैं। फिर क्या होता है, वो पूरा डेटा उठा के, वो मशीन में जो भी डेटा है उसको उठा के एक सेंट्रल लोकेशन में ले जाया जाता है। उस सेंट्रल लोकेशन में फिर वो उसको काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो इट टेक्स टाइम। whereas we can do that in MapReduce like that कि हर एक बूथ में जितना भी अलग अलग बैलेट, जो भी बैलेट हैं, बैलेट पेपर्स हैं, उनको हम लोग अलग अलग सॉर्ट कर दें और उसको काउंट कर लें, और जो रिजल्ट आया है कि पिंक बैलेट का ये काउंट है, येलो बैलेट का ये काउंट है, ब्लू का ये काउंट है, सिर्फ ये काउंट अगर हम भेजें तो द प्रोसेसिंग विल बी फास्टर देयर इन द सेंट्रल और द सेंट्रल नोड, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हम कर पा रहे हैं, डेटा लोकेलिटी। हियर वी आर नॉट मूविंग द डेटा, जैसे ट्रेडिशनल में हम डेटा को मूव करके प्रोसेसर के प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के पास लेके जाते थे। हियर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इज मूविंग टूवर्ड्स द डेटा वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, दैट इज हेल्पिंग अस टू डू अवर टास्क फास्टर, ठीक है। तो डेटा लोकेलिटी मतलब मूविंग डेटा टू प्रोसेसिंग इज वेरी कॉस्टली, सो वी आर मूविंग processing to data in MapReduce. Understood? These are the two advantages of MapReduce. ठीक, तो कैसे हम MapReduce का एग्जीक्यूशन वे कैसा होगा? ट्रेडिशनल तो अभी मैंने आपको बताया, कोई मैपिंग वगैरह नहीं, ठीक। दो एग्जांपल आपको लेकर बताया मैंने। कैन जस्ट इमेजिन अ फाइल और अ टेक्स्ट फाइल stored somewhere as a notepad में आपने कुछ लिखा, वो कहीं stored है, that can be input file for you, ठीक है। that has to be stored there in the HDFS, then only you can access it. then map किया आपने, ये मैप कैसे हो रहा है, जितने डेटा नोड्स होंगे वहां पर ये मैप टास्क परफॉर्म हो रहा है। यू आर मैपिंग योर प्रोसेसिंग, whatever processing you want to perform on that input file, you have to divide it into different data nodes, जो नेम नोड सेलेक्ट करेगा, ठीक। वहां आपने मैप किया। नाउ ड्यूरिंग मैपिंग वेरियस ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड, वी विल लर्न इट जस्ट आफ्टर दिस स्लाइड, ठीक। तो मैप टास्क के साथ साथ और भी बहुत सारा काम हो रहा है, बट अभी ये समझिए डेटा नोड्स में आपने मैप कर दिया, अब वो डेटा नोड अपने इंटरनल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। नाउ व्हाटएवर दे हैव परफॉर्म्ड हैव टू बी एक्सचेंज बिटवीन देम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस टास्क, ठीक। सभी का रिजल्ट आपस में जोड़ा तो एक कॉमन रिजल्ट बनेगा, दैट विल बिकम द आउटपुट। सो रिड्यूसर विल टेक द रिजल्ट ऑफ मैपर फर्स्ट, विच फेज विल एग्जीक्यूट, मैप फेज। ये हमेशा याद रखना, पहले मैप होगा फिर रिड्यूस होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन वी परफॉर्म रिड्यूस फर्स्ट? नो, we cannot perform reduce first. First you have to convert the input file into key value pair that can only be performed by map. Map will perform many tasks in between its phase. उसके बाद ही आप उस पर reduce लगा सकते हो। तो first phase will be map. Once the map will be completed, then only you can start the reduce phase or reduce task. ठीक है? Then you will get the output. This is map reduce execution way. This is the analogy जो अभी मैंने आपको बताया। देखो ये पोलिंग बूथ बैलेट्स, ये 3 पोलिंग बूथ्स हैं, अलग अलग कलर के बैलेट पेपर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज आपको दिख रहा है, ठीक। अभी क्या कर रहा है, हम ये मान रहे हैं कि ये टेलर है जो यहाँ पर हम मैप रिड्यूस वे में भी जा रहे हैं, तो क्या क्या कैसे काम होगा, ठीक। तो ये टेलर क्या कर रहा है, जो भी पोलिंग बूथ के बैलेट्स हैं उसको अब उसको मैप करना है, ठीक है। वैसे ही सारे टेलर्स के पास सेम डेटा जाएगा, अलग अलग उनके बूथ का डेटा जाएगा। दैट टास्क हैज टू बी फर्स्ट मैप्ड,
कैसे मैप होगा? यही 3 लोग इस टास्क को कैसे अच्छा फास्ट कर सकते हैं? तीनों जगह सेम टाइप के बैलेट पेपर्स यूज हो रहे हैं, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। हमारे पास 3 टेलर्स भी हैं। रेदर देन डूइंग आप तीनों रेदर देन काउंटिंग ईच ऑफ द बैलेट पेपर बाय ईच ऑफ द टेलर, हम क्या कर सकते हैं? हमने मैप कर दिया। फर्स्ट हम वी हैव डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट, जितना अगर ब्लू है तो हमने एक को दिया, सारे ब्लू बैलेट्स ऑफ डिफरेंट बूथ विल बी काउंटेड बाय वन टेलर। तो जैसे ब्लू आपको दिख रहा है, फर्स्ट टेलर उसको काउंट कर रहा है, ग्रीन जो दिख रहा है सेकंड टेलर उसको काउंट करेगा, लाइक दैट। सो इट विल इंक्रीज योर टास्क, बट यू हैव टू मैप फर्स्ट। वेयर इज माय माउस? ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने मैपिंग की। एंड मैपिंग करने के बाद दिस टेलर हैज गिवन अस द काउंट ऑफ द ब्लू बैलेट, ये ग्रीन हमको दिया, हमने जब बस उसको सम किया, सम करने के बाद हमने इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैपिंग कर सकते हैं। व्हाट इट इज रिटन, द की रीजन टू परफॉर्म मैपिंग एंड रिड्यूसिंग इज टू स्पीड अप द जॉब एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोसेस। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय स्प्लिटिंग अ प्रोसेस इनटू अ नंबर ऑफ टास्क। हियर वी आर डिवाइडिंग दिस सिंगल, एक टेलर का जो प्रोसेस था, वी आर डिवाइडिंग इनटू नंबर ऑफ टास्क, thus enabling parallelism to get to do that in parallel। ठीक है, करेक्ट। तो ये एनाटॉमी है, इस एनाटॉमी को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, नोट कर लेना, एनाटॉमी ऑफ मैप रिड्यूस। ठीक है, तो मैप रिड्यूस ऑलवेज वर्क्स इन की वैल्यू पेयर, वेयर मैप विल डिवाइड द इनपुट फाइल इनटू की वैल्यू पेयर, देन की वैल्यू पेयर से वो लिस्टिंग करता है। हम देखेंगे कैसे ये लिस्ट बनाता है। एक की के पास अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो उसका लिस्ट बनाता है। एंड व्हाट रिड्यूसर विल डू, वंस इट विल गेट दिस आउटपुट, तो ये क्या करता है, हर एक की के आगे जितनी वैल्यूज हैं उसको वो सम कर लेता है, और या फिर उसकी लिस्टिंग, सम करके यहाँ पे लिख रहा है बट उसकी लिस्टिंग करता है, एक की उसके इतनी वैल्यूज, एंड देन इट गिव्स लिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, तो ये मैप और रिड्यूस का एक्चुअल वर्क है। तो here we can define a user defined map function is applied to each input record to produce a list of intermediate key value pairs। ठीक है, we can define our own map function which is applied to each input record to produce a list of intermediate key value pair, and in the same way we can also define a reduce function which is called only once for each distinct key in the map output। मैप का जो भी आउटपुट आएगा उसमें जो डिस्टिंक्ट की एलिमेंट्स होंगे उस पे हम रिड्यूस फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, ये मैप रिड्यूस का एसेंशियल है। दिस इज एन एग्जांपल, वर्ड काउंट एग्जांपल, ध्यान से देखना, बस यही इसी एग्जांपल के थ्रू आपको अपना मैप थ्योरी में ये चीज समझा देनी है। ठीक है, तो देखो कैसे हो रहा है मैप रिड्यूस वर्ड काउंट एग्जांपल में। हियर इनपुट इज गिवन एज, जैसा दिया हुआ है, टेक्स्ट फाइल है, मान लो उसमें 3 लाइन लिखी हुई है, डियर बियर रिवर, कार कार रिवर, डियर कार बियर। आपने इसमें से क्या कर दिया, तीनों लाइन को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, स्प्लिट कर दिया, आप डिवाइड कर रहे हो, टास्क आपको डिवाइड करना है, आपको मैप करना है। ठीक, तो हर एक लाइन को आपने स्प्लिट कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग, एज यू कैन सी, ये फर्स्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग। तो 3 पार्ट्स में हमने स्प्लिट किया, जिसमें हर एक लाइन को हमने एक अलग इनपुट रिकॉर्ड्स जैसे, इनपुट स्ट्रीम जैसे हमने स्टोर कर लिया। ठीक, अब ये एक स्ट्रीम जो है एक डेटा नोड के पास जाएगा, उसको इस पे काम करना है, ये एक डेटा नोड के पास जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपने एचडीएफएस में उसको स्टोर किया है। नाउ मैपिंग हैज टू बी डन इन मैप रिड्यूस। कैसे होगा, जो भी, अब ये मैपिंग कहां पे हो रहा है, इंडिविजुअल डेटा नोड्स पे हो रहा है। ठीक, इंडिविजुअल डेटा नोड्स पे हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट टेक्स्ट फाइल के फर्स्ट लाइन में जो लिखी हुई है उसको आप की वैल्यू पेयर में अगर डिवाइड करते हो, ये की वैल्यू पेयर में, तो क्या बनेगा,
ये लिख रहा है कि डियर एक बार आया है, वर्ड काउंट कर रहे हैं हम, ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि इस टेक्स्ट फाइल में एक वर्ड कितनी बार आया है। ठीक, तो हमने डिवाइड किया टास्क को, अब देख रहे हैं कि डियर वन, रिवर वन, लाइक दैट। ठीक है, वैसे ये भी हमने डिवाइड किया। अब आप ये सोचो कि कार 2 बार आया तो हमने 2 क्यों नहीं लिख दिया? मैपर को ये नहीं पता है, दिस इज द टास्क ऑफ रिड्यूसर, कि ये दोनों वर्ड्स, दोनों कीज एक जैसी हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैच करने का काम किसका है? रिड्यूसर का काम है। मैपर इज सेग्रीगेटिंग एवरी वर्ड्स, जस्ट डिवाइडिंग एवरी वर्ड्स, है ना, और उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में लिस्ट बनाकर वो स्टोर कर रहा है। ठीक, इसलिए यहाँ पर कार वन, दूसरा वर्ड कार वन, वो भी पहली बार आया, वो भी एक बार आया, ऐसा करके हमने सभी को 1 1 1 करके लिख दिया। ठीक है, ये मैपर का काम है। मैंने बोला था मैपिंग एंड रिड्यूसिंग के बीच में एक स्मॉल टास्क होता है विच इज नोन एज शफलिंग। हम लोग उसको शफल एंड सॉर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो उसमें क्या हो रहा है। इट इज टेकिंग डेटा फ्रॉम ऑल द डेटा नोड्स, ठीक, और हर एक डेटा नोड से डेटा लेने के बाद ये क्या कर रहा है? लिस्टिंग कर रहा है कि बियर इस, जैसे कि इस वाले फर्स्ट वाले डेटा नोड में एक बार आया है, किसी और में आया है क्या? हाँ, एक बार इसमें आया है, तो उसने बस 1 1 यहाँ पे लिख दिया, लिस्टिंग कर ली कितनी बार ये रिपीट हुआ है अलग अलग डेटा नोड्स में। ठीक है, तो दे आर जस्ट शफलिंग their data, they are communicating, those data nodes are communicating with various communication protocol with each other and shuffling their data। ठीक है, जो की मैच हो रही हैं उनकी उनके फ्रीक्वेंसीज को वो लिस्ट करते जा रहा है। ठीक, and after doing this shuffling part, reducer will come into picture and it will reduce the word or key list values into summation, कि कितनी बार, like that 1 1, तो ये 2 times, ये 3 2 1, like this। ये रिड्यूसर का काम है, सम करने का, ज्वाइन करने का काम। ठीक है, तो मैपिंग और रिड्यूसिंग के बीच में शफलिंग एंड सॉर्टिंग करने के बाद, सॉर्टिंग मैं बताती हूँ, इसके नेक्स्ट एग्जांपल और लिया है मैंने जिसमें सॉर्टिंग भी मैं करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज शफलिंग, इसमें आपने शफल किया बिकॉज यहाँ पर सॉर्ट करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही थी। ठीक, तो शफलिंग एंड सॉर्टिंग, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकते थे, तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ पिक्चर ऑफ दैट, तो आई जस्ट ब्रॉट इट फ्रॉम समवेयर। तो रिड्यूसिंग में इस तरीके से होगा और फाइनल रिजल्ट में हमको लिस्ट ये मिलेगी कि बियर 2 times ये, और ऐसा इस तरीके से। ये अलग अलग डेटा नोड्स पे जो काम चल रहा था, जो आपस में वो कम्युनिकेट करके एक रिजल्ट निकाल रहे थे। एट द लास्ट वी विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स विद देयर फ्रीक्वेंसीज। सो दिस इज वर्ड काउंट एग्जाम्पल। ठीक, इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो वन वर्ड काउंट एग्जाम्पल। इसमें आप देखिए स्प्लिटिंग सेम वैसे ही हो रही है। वी आर स्प्लिटिंग इट इनटू 2 parts and then we are mapping it, वही 1 1 1 हम लगा रहे हैं, जितने भी वर्ड्स हैं उनके सामने हम एक 1 लगा रहे हैं, एंड देन वी आर शफलिंग इट। देखो शफलिंग एंड सॉर्टिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक, ये इस तरीके से सॉर्टिंग कैसे हो रही है, देखो वहां पे हमने 1 1 लिख दिया था, है ना, इसके पहले वाले में ये जो लिस्टिंग हो रही है, ये जो लिस्टिंग हो रही है, यहाँ पे सीधे 1 1 लिया था, ये सॉर्ट होने के बाद ये काम हो रहा है ना। तो ये देखो, ये यहाँ पर डॉग 2 times आया है, तो पहले एक के नीचे एक आपने उसको सॉर्ट कर लिया है, ये A1 ये सॉर्ट कर लिया है शफल करके, एंड देन 1 1 इस तरीके से उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो आउटपुट जाएगा वो लिस्ट के फॉर्म में ही जाएगा, बट इसको और थोड़ा अंदर देखने के लिए कि कैसे हो रहा है, वो आप ऐसे इस तरीके से होता है। एंड देन रिड्यूसिंग में वी आर डूइंग द सेम थिंग, जितनी बार जो आया है उसको हम काउंट करके दे रहे हैं, और फिर फाइनल आउटपुट एज ए लिस्ट। ठीक, सो दिस इज मैप रिड्यूस word count example. The essentials of each map reduce phase are as follows. क्या क्या essentials है? We can have a number of reduced tasks, मतलब a user can define their own reduced task.
कितने नंबर ऑफ रिड्यूस टास्क होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर। ठीक, ईच रिड्यूस टास्क इज असाइंड अ सेट ऑफ रिकॉर्ड ग्रुप्स, आपने देखा अभी, दैट इज इंटरमीडिएट रिकॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ कीज। ठीक, फॉर ईच ग्रुप अ यूजर डिफाइंड रिड्यूस फंक्शन इज अप्लाइड टू द रिकॉर्डेड वैल्यूज। 1 minute। So for each group, a user-defined reduce function is applied to the recorded values। ठीक है, कैसे रिड्यूस हो रहा था अभी हमने देखा, वही चीज को यहाँ लिख रहा है। द रिड्यूस टास्क का रीड फ्रॉम एवरी मैप टास्क। यस, ये तो हम देख रहे हैं, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। रिड्यूस टास्क है ना, ये रिड्यूस टास्क इज टेकन फ्रॉम एवरी मैप आउटपुट। एवरी मैप आउटपुट पे रिड्यूस टास्क होता है। ठीक, फॉर एवरी मैप टास्क एंड ईच रीड रिटर्न्स द रिकॉर्ड ग्रुप्स फॉर दैट रिड्यूस टास्क। करेक्ट। So reduce phase cannot start until all mappers have finished processing। ये ध्यान रखना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैपर जब अपना काम कंप्लीट कर लेंगे देन ओनली रिड्यूस फेज विल स्टार्ट। रिड्यूसर कैन नॉट स्टार्ट अंटिल एंड अनलेस मैपर हैव फिनिश्ड। ठीक है, मैपर्स टास्क हैव फिनिश्ड, बस ये ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि ये भी पैरेलल चलते हैं, मैपर अपना काम कर रहा है साथ ही साथ रिड्यूसर भी अपना काम कर रहा है। नो, क्यों नहीं कर सकते? इसका आंसर क्या है? क्योंकि आपने टास्क को मल्टीपल डेटा नोड्स में डिवाइड कर दिया है। आपके पास पूरा डेटा एक डेटा नोड पे नहीं है कि आप उस पे देखकर रिड्यूसिंग लगा दिए और फिर आउटपुट दे दिए, फिर कुछ और डेटा आया तो उस पर रिड्यूसिंग लगा दिए फिर आउटपुट दे दिए। नो, यू कैन नॉट डू दैट। वंस ऑल द डेटा नोड्स विल inform you कि उनका काम हो गया है, then you will perform shuffling and sorting, then only you can say that our task, हमारा जो टास्क है वो हो चुका है, then only reducer can start its execution। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में काम हो रहा है तो रिड्यूसर कैन नॉट स्टार्ट बिफोर ऑल until all mappers have finished their processing। ओके, तो अगर आपको थ्योरी में पूछेगा कि मैप रिड्यूस एग्जीक्यूशन फेजेस क्या हैं, जब मैप हो जाता है सारे रिकॉर्ड हैज बीन फेड टू मैप फंक्शन, तब हमको एक बिजनेस लॉजिक, जो बिजनेस लॉजिक हमने डिफाइन किया है मैप के लिए, वो एग्जीक्यूट होता है और आउटपुट ऑफ द मैप फंक्शन इज पास टू द नेक्स्ट कंपोनेंट कॉल्ड एज पार्टीशन फेज। मैप फेज का जो आउटपुट है इट विल बी असाइन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो जो मैपर का जो आउटपुट है ना वो टेम्पररी है, इट इज नॉट रिटर्न टू एचडीएफएस। आप अगर बोलोगे कि मैपर ने क्या आउटपुट दिया ये मुझे देखना है, तो यू कैन नॉट डू दैट, और वो एचडीएफएस में रिटर्न नहीं होता। आप एचडीएफएस से उसको कहीं बाद में उसको राइट करके नहीं देख सकते। ठीक है, इट इज अ होल प्रोसेस। तो मैपर का जो भी आउटपुट होता है दैट इज अ टेम्पररी विच इज नॉट रिटर्न टू एचडीएफएस। So before the intermediate output is passed to the पार्टीशनर, जो ये पार्टीशन फेज में जो पार्टीशनर बोलते हैं हम उसको, है ना, इस बीच में कंबाइनर भी काम करता है। कैसे काम करता है? जो पार्टीशनर है उसका काम क्या होता है? इट डिसाइड्स वेयर अ गिवन की वैल्यू पेयर विल गो, किस रिड्यूसर के पास जाएगा ये डिसाइड कौन करता है? पार्टीशनर करता है। देखो रीड करके देखो, मैप फेज में क्या हो रहा है? रीड्स असाइन इनपुट स्प्लिट फ्रॉम एचडीएफएस, वहां से रीड कर रहा है, पार्सेस इनपुट इनटू रिकॉर्ड्स एज, देखो की वैल्यू पेयर को हम रिकॉर्ड बोल रहे हैं पूरे टाइम, ये भूलना मत। रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्या आ जा रहा है बीच में? की वैल्यू पेयर जो हम बना रहे हैं उसी को हम रिकॉर्ड बोल रहे हैं। इट अप्लाइज मैप फंक्शन टू ईच रिकॉर्ड, देन इन्फॉर्म्स द मास्टर नोड्स टू इट्स कंप्लीशन, कि मेरा मैपिंग हो गया है। देन द नोड, जो मास्टर नोड है, दैट विल स्टार्ट द पार्टीशनिंग फेज। पार्टीशनर को ये दे दिया काम कि नाउ दैट स्प्लिटेड की वैल्यू पेयर्स और द रिकॉर्ड्स को आपको कौन कौन से रिड्यूसर के पास भेजना है, इट इज योर टास्क टू डिसाइड। ठीक है, सो बिफोर पासिंग मैपर्स आउटपुट टू रिड्यूसर, it will sorts the output based on the key. So each mapper must determine which reducer will receive each of the output. ये partitioner कर रहा है.
फॉर एनी की द डेस्टिनेशन पार्टीशन इज द सेम, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टीशन इक्वल टू नंबर ऑफ रिड्यूसर, जितने पार्टीशन आप बनाओगे, आपने देखा फर्स्ट वाले एग्जांपल में, जितने पार्टीशन आप बनाओगे उतने नंबर ऑफ आपको रिड्यूसर भी लगेंगे। देन शफलिंग फेज में हम क्या करते हैं, वी फैक्चेस इनपुट डेटा फ्रॉम ऑल मैप टास्क, जितनी भी मैपिंग हुई है, फॉर द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू द रिड्यूस टास्क बकेट। देन सॉर्ट फेज में वी मर्ज sorts all map outputs into a single run, and at the end we do there is a reduce phase that applies the user defined reduce function। आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक हम वहां पे ऐड कर रहे थे, आप वहां एवरेज कर सकते हो, आप वहां पे कुछ फॉर्मूला लगा सकते हो कि क्या क्या करना है। वो रिड्यूस फंक्शन तो आप बनाने वाले हो, राइट। अभी तो हमने सिर्फ काउंट करके लिखा है कि 1 1 1 था, उसको आपने 2 कर दिया, ठीक। तो शफल एंड सॉर्ट तक तो ये चीजें आपके पास रहेंगी, बट उस डेटा में क्या करना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द यूजर। वॉट एवर रिड्यूस फंक्शन इज डिफाइंड बाय द यूजर, it will that will be merged and give the result to the user or the client back, ठीक है। So this is map reduce execution phase।